Good morning, students. Welcome to regional level online classes. I am Desraj Prajapati, TGT Science, केंद्रीय विद्यालय महाराजखंड, डिस्ट्रिक्ट बालाघाट. I would like to give hearty thanks to our AC sir and DC sir to giving an opportunity to teaching online platform. Okay, students. So today we are going to study about science class 7th चैप्टर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंज. बच्चों आज हम क्लास 7 का चैप्टर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंज के बारे में पढ़ेंगे. बहुत ही इजी लैंग्वेज में पढ़ेंगे और आई होप आपको समझ आ जाएगा. देन लेट स्टार्ट चैप्टर. चैप्टर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंज. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट. इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो देखते हैं. फर्स्ट थिंग इज अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस अराउंड अस. हमारे आसपास जो भी फिजिकल और केमिकल चेंजेस पाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. केमिकल और फिजिकल चेंज की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे. नेक्स्ट different examples of physical and chemical changes. Also difference between chemical and physical changes. इनमें difference क्या है? How can we differentiate? Significance of physical and chemical changes. और हमारे लाइफ में फिजिकल और केमिकल चेंजेस की इंपॉर्टेंस क्या है. ओके स्टूडेंट्स, before the learning about physical and chemical change we have to do and observe activities. So please observe activity. In this video many activities are given there, so I request to students please watch carefully these activities. Okay. In physical change, matter can be returned back into original case. In physical change, only physical shape of object will change. In this activity, you have seen melting of ice. In melting of ice, only its physical shape will change. Okay, from solid to liquid. Activity second is dissolving of tablet salt in water. टेबल साल्ट इन वाटर. साल्ट को इसमें किया गया डिजॉल्व. इस एक्टिविटी में सॉलिड साल्ट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड सॉल्यूशन. ओनली इट्स फिजिकल शेप विल चेंज. ओके, सी दिस एक्टिविटी.
कटिंग ऑफ पेपर। कटिंग ऑफ पेपर में क्या हो रहा है, पेपर के बड़े पीसेस को, बड़े साइज को छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसमें कोई इसकी कंपोजिशन या कोई केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो रहे हैं। ओके, देन सी नेक्स्ट एक्टिविटी। मेल्टिंग ऑफ चॉकलेट। चॉकलेट क्या होता है, सॉलिड होता है। आफ्टर मेल्टिंग ऑफ it converted into paste like structure, means a in liquid state. Okay, only shape of object has changed. Bending or ducting of metals। metals को अपन बेंड कर सकते हैं या they can converted into thin wires or thin sheets। Okay, in this case solid metals change into different type of shapes, means there are only shape will change। Okay, you have seen many activities in our present screen. There are given many activity on a screen. In this screen there are different uh, states of water is given in the form of water cycle, evaporation. In this process liquid water converted into water vapors, means liquid converted into their uh, vapor state। आफ्टर दिस कंडेंसेशन, इसमें क्या होता है, कंडेंसेशन में वाटर वेपर कन्वर्टेड इनटू अगेन लिक्विड। ओके, आफ्टर दिस प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन में क्या होता है, जो लिक्विड वाटर है क्लाउड के फॉर्म में है, वो अगेन गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। ओके, एंड अगेन इट इज इनटू अर्थ। इन मेकिंग ऑफ आइसक्रीम, आइसक्रीम में क्या होता है, ये जो हम मिल्क है, क्रीम है, मिक्सचर है, उसको क्या करते हैं, कूल क्या करते हैं, तो क्या बन जाता है, ये सॉलिड। मतलब ये लिक्विड से सॉलिड बन गया। इसके कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आया, इसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आया, केवल इसका शेप चेंज हो गया। और उसको फिर हीट मिली तो फिर ये अगेन इट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट। ओके, breaking of glass, a large pieces of glasses converted into small pieces, only their shape changed। Cutting of woods,
crushing up cookies. Yeah, these cookies crushed into small pieces. Okay. Then we can say in physical changes only their shapes or their physical property has changed. Physical properties means that properties uh, which can be we can feel, we can touch, we can see. ओके, मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, दैट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज, है ना, लाइक देयर शेप, their state, etc. So, she activities. अब आप केमिकल चेंजेस से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज देखेंगे. ओके, इन इट इज a change in the shape and the structure of the substance giving a new substance with new properties. मतलब इसमें जो आपके ओरिजिनल सब्सटेंस से एक न्यू सब्सटेंस बनते हैं, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज भी न्यू होती हैं. दीज आर डिफरेंट फ्रॉम ओरिजिनल सब्सटेंस. ओके, तो सी एक्टिविटीज. In this activity, बर्निंग ऑफ शुगर, यहाँ पर शुगर को बर्न किया जा रहा है उसको. हीटिंग ऑफ शुगर एंड बर्निंग ऑफ शुगर इज डिफरेंट प्रोसेस. ओके, शुगर को मेल्ट करना और बर्न करना ये दोनों अलग प्रोसेस है. ओके, देखिए, मेल्टिंग ऑफ शुगर इज physical change, but burning of sugar is a chemical change. Okay, because some amount of substance converted into vapors or heat are in the form of energy. Okay, then see next. Rotting of fruits and vegetables. एक बार फ्रूट और वेजिटेबल रॉट हो जाने के बाद, सड़ जाने के बाद, वी कैन नॉट अगेन एबल टू कन्वर्टिंग इट इनटू ओरिजिनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. ओके, मींस वी कैन से दिस चेंज इज इरिवर्सिबल. मतलब हम इसको फिर से ओरिजिनल सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं. ओके, लेट्स सी. In this activity, when sulfur is come into contact with fire, then it is starting to burning and sulfur dioxide is produced. Okay, and form some bubbles like this video, this structure. Okay. Photosynthesis. What is for photosynthesis? With the help of photosynthesis process, plants make their food. How they make their food? With the help of carbon dioxide, water, sunlight, in the presence of
chlorophyll, they form their food in the form of carbohydrate. Okay, these carbohydrate cannot again converted into carbon dioxide, water, and sunlight. Okay, there are green leaves. फूड डाइजेशन, फूड डाइजेशन में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कन्वर्टेड इनटू simpler substances. Okay, and our body get nutrition by the process of digestion. डाइजेशन में जो हम फूड में मटेरियल लेते हैं वो क्या होता है? सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है, उससे हमको एनर्जी मिलती है ना, न्यूट्रिएंट मिलते हैं बॉडी को। अब इन न्यूट्रिएंट्स के थ्रू हम फिर से फूड मटेरियल प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। ओके, मतलब इसकी पूरी प्रॉपर्टी चेंज हो चुकी है। पहले फूड की प्रॉपर्टी कुछ और थे, डाइजेशन के बाद जो सब्सटेंस बनता है बचता है वो these are totally different. Okay, see next. रस्टिंग ऑफ आयरन, आपने देखा होगा कि यदि हम कोई आयरन की थिंग को बाहर छोड़ दें कुछ दिनों के लिए, क्या होता है? उसमें जंग लग जाता है, ये दैट इज रस्ट, है ना। अब इस जंग को हम फिर से मेटल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ओके, रस्टिंग इज a process any metal reacts with water, different gases, and forms some new substances. Okay, and by this process metal get decayed. Okay, these are some examples of chemical changes. So in this video you have seen many activities. आपने इस वीडियो में बहुत सारी एक्टिविटीज देखी बच्चों, एंड आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होता है। तो एक दो एक्टिविटीज और तो देखेंगे जिसको आप घर में भी कर सकते हैं और केमिकल और फिजिकल चेंज को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देन लेट्स सी बर्निंग ऑफ कैंडल। कैंडल को आप घर में बर्न कर सकते हैं बहुत इजीली। ओके, लेट्स सी कैंडल को हमने बर्न किया, बर्न करने पर दो प्रोसेस हो रही है। एक प्रोसेस क्या होती है? मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वैक्स मेल्ट होता है। ये देखिए वैक्स मेल्ट होना स्टार्ट हो गया, एंड सम पार्ट ऑफ वैक्स converted into in the form of heat. It get vaporized and converted into heat and light. It is a form of energy. Okay, so melting of
wax is a physical change, whereas lightning of wax means when it converted into light energy, then it is a chemical change. Okay, students. ये देखिए आपने, ये जो वैक्स है अगेन कंडेंस होके ओरिजिनल वैक्स बन गया, और जो ये लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया कुछ सब्सटेंस, उसको अपन फिर से ओरिजिनल वैक्स नहीं बना पाएंगे. सो इट इज ए केमिकल चेंज एंड melting of wax is a physical change. Okay, students. A activity is very easy activity. आपने देखा होगा कर्ड फॉर्मेशन, दही हम कैसे बनाते हैं, घर में सब बनता होगा, सबने देखा होगा. क्या करते हैं, pour about 100 ml of milk in a bowl, add about 20 ml of vinegar, or you can use lemon juice or whey in place of vinegar. कोई दिक्कत नहीं. आप क्या लेंगे, एक बाउल में क्या लेंगे, मिल्क लेंगे, और उसमें क्या करेंगे आप, ये तो लेमन जूस या वे मतलब मट्ठा या विनेगर उसमें मिक्स करेंगे. आफ्टर सम टाइम दिस मिल्क गेट कन्वर्टेड इनटू पेस्ट लाइक सब्सटेंस दैट इज कर्ड. कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि वो जो आपका मिल्क था वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है. ओके, इट इज ए इरिवर्सिबल चेंज. अब हम चाहें कि कर्ड को फिर से मिल्क में बना ले, तो इट इज मींस इट इज इरिवर्सिबल. इसको अपन इस चेंज को रिवर्स नहीं कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मिल्क एंड कर्ड आर टोटली डिफरेंट. मिल्क की प्रॉपर्टी और कर्ड की प्रॉपर्टी आप जानते ही होंगे कि टोटली डिफरेंट है. न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ है उसमें. दैट टाइप ऑफ चेंज आर नोन एज केमिकल चेंज. ये है कर्ड फॉर्मेशन. स्टूडेंट्स, ये हमने इसमें मिक्स किया तो ये कर्ड बन गया है. अकॉर्डिंग टू अबव एक्टिविटीज वी कंक्लूड दैट, जो भी हमने एक्टिविटीज देखी उनके बेस्ड पर हम कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, व्हाट इज केमिकल चेंज? इट इज ए प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, इज कॉल्ड केमिकल चेंज. इट इज ए इरिवर्सिबल चेंज. ओके, these are some properties of chemical change. In this process, original substance lost their properties. The properties of new substances are different from original substance. Okay, बहुत इजी है केमिकल चेंज. इसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है और जो न्यू सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज हैं ओरिजिनल सब्सटेंस से टोटली डिफरेंट होती है, एंड इट इज ए इरिवर्सिबल चेंज. तो बच्चों, आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि केमिकल चेंज क्या है. एक बार और सुन लीजिए. केमिकल चेंज इज अ चेंज, ऐसा चेंज जिसमें कोई नया सब्सटेंस बनता है और उसकी प्रॉपर्टी ओरिजिनल सब्सटेंसेस से बिल्कुल डिफरेंट होती है. दैट इज ए केमिकल चेंज. ओके स्टूडेंट्स, देन नेक्स्ट, physical change. How is a physical change? In this change, only physical properties get changed, like shape, physical state, etc. Their shape, properties of substance remain same. This process can be reversed. Other example of physical changes, melting of wax. So you have seen uh, in above activities many changes. Okay, फिजिकल चेंज क्या है, जिसमें सब्सटेंस की केवल फिजिकल शेप चेंज होता है, उसकी स्टेट चेंज हो सकती है, बट उसमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है. ओके स्टूडेंट्स, केवल उसका शेप चेंज हो सकता है. जैसे हमने बलून लिया, बलून में एयर फिल कर ली, पहले छोटा था बलून, अब क्या हो गया, लार्ज साइज में हो गया, मतलब उसका शेप चेंज हो गया. बैलून रबर का ही है, सेम है. ओके, वैक्स को हमने किया मेल्ट, सॉलिड था लिक्विड बन गया, फिर सॉलिड बन गया. वाटर को क्या किया, हीट दिया, लिक्विड वाटर है, गैस वाटर बन गया. बट वो वाटर का फार्मूला H2O है, तो H2O ही रहेगा, चाहे वो वेपर्स हो या कि लिक्विड हो या कि सॉलिड हो.
Okay, students, is that clear? Then next, difference between physical and chemical change. So we can write easily difference between chemical and physical change on the with the help of you studied above. बहुत इजी है. फर्स्ट पॉइंट, इन फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, और इसमें न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म. वेरी इजी है. ओके, ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज गेट चेंज, इसमें केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक देयर शेप चेंज होता है, और इसमें पूरी प्रॉपर्टी ही चेंज हो जाती है. न्यू सब्सटेंस की न्यू प्रॉपर्टीज होती हैं. ओके, चेंज इज टेम्परेरी, टेम्परेरी चेंज है, इट कैन बी रिवर्स्ड, और चेंज इज परमानेंट, मतलब न्यू सब्सटेंस बन गया वो परमानेंट बन गया. फिर ठीक है. चेंज कैन बी रिवर्स्ड बाय डिफरेंट फिजिकल मेथड्स, मतलब चेंज को अपन क्या कर सकते हैं, रिवर्स बाय फिजिकल मेथड्स क्या है, लाइक इवेपोरेशन, कंडेंसेशन. ओके, दीज आर सम फिजिकल मेथड्स, मतलब इसको अपन रिवर्स कर सकते हैं, और ये फिजिकल मेथड के थ्रू ये रिवर्स नहीं हो सकता है, और यदि पॉसिबिलिटी भी है तो केवल कुछ स्पेसिफिक मेथड से ही हो सकता है रिवर्स, लाइक इलेक्ट्रोलिसिस एटसेट्रा. ओके स्टूडेंट्स, कुछ चेंजेस के मैंने नाम लिखे हैं, और आपको इसको बताना है कौन सा फिजिकल चेंज है और केमिकल चेंज है. यदि आप इनके आंसर दे पाएंगे, मतलब आपको चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया, टॉपिक अच्छी तरह से समझ आ गया. ओके स्टूडेंट्स, होमवर्क है ये, कुछ प्रोजेक्ट आपको लिस्ट दिया है मैंने, आपको फिजिकल और केमिकल चेंजेस की लिस्ट में बनाना है अपने आसपास जो भी है, और यदि पॉसिबल हो तो उनके पिक्चर्स भी आप कलेक्ट करेंगे. ओके, थैंक्स बच्चों. आई होप आपको टॉपिक अच्छी तरह से आ गया होगा समझ. नेक्स्ट वीडियो में हम इसके फिजिकल और केमिकल चेंजेस के कुछ और एग्जांपल्स पढ़ेंगे, कुछ उनके यूज पढ़ेंगे, हमारे डेली लाइफ में क्या यूज है. थैंक्स स्टूडेंट्स. ओके.